Environmental pollution and control, C801. Just a minute. Okay. So as of now, we have discussed the terminologies and the statistics or the figures and the facts about water footprint and carbon footprint. So let us just go through some few other statistics here from this diagram and of global greenhouse gas emission by sectors. So here the major sectors which is participating in contributing this greenhouse gas is from energy sector, then the forestry sector, the agricultural part, then the industrial sector, next the transport sector, and at the last the building and or the constructional sector. So if we judge this air pollution by material wise, so we can see from this diagram that steel is taking the major part of contributing the air pollution. Next is the chemical part and the other sector. Next is the cement industry, then food and drink, then paper, plastic, aluminium, motor manufacture, textile, printing. So these are some material wise emission which has been shown in this graph. So now let us come to very basic thinking of our society. Just now see, mostly people believe that there is no money in saving environment. So this is a very harsh truth to accept, that there is no business, there is no money, there is no power in order to save our environment in a work or to be associated with such work which can save our environment. It gives no such money or power or any kind of material accommodations which we want in our daily life to be entertained. Like, so there is no money in saving environment, such as those who fell trees and killed wild animal unauthorizedly. So rather than conserving it and try to cohabit with ecosystem. मतलब कि इंसान को ज्यादातर लगता है कि मतलब क्योंकि ये एनवायरमेंटल इको फ्रेंडली काम में ज्यादा पैसा नहीं होता है और ज्यादा तुम वो जगह अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि just see, everything is associated to money these days. मतलब तुम्हारा जो बचपन से लेके बड़े होने तक का जो एक्चुअल जो डायरेक्शन होता है लाइफ का, वो क्या होता है? तुमको एक अच्छा नौकरी मिलना है. अब अच्छा नौकरी का मतलब क्या होता है? जहां से तुम बहुत अच्छा पैसा मतलब इनकम कर सको. At the end of the day, money is the last thing in these days, right? So our psychology is, अब अगर कोई दूसरा एक बंदा कोई मॉडल लेके आता है जो कि इको फ्रेंडली एकदम ही नहीं है, पर उसका मतलब मनी रेवेन्यू मॉडल बहुत अच्छा है, तो इमीडिएटली इन्वेस्टर को वो आइडिया पसंद हो जाएगा और वही पे पैसा डालेगा. पर जहां पे इको फ्रेंडली मॉडल वहां से ज्यादा मनी रेवेन्यू नहीं होगा, तो वो वाला मॉडल एक्सेप्ट होने से रहेगा. तो ऐसा ही कुछ हम डेली बेसिस में देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है छोटे छोटे चीज में, मतलब हम अभी ज्यादा मॉडिफाइड या टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गए हैं, तो इसीलिए हमको मतलब अब इको फ्रेंडली, अगर तुमको इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल लीड करना है तो तुमको बहुत सारे ऐसे चीज को छोड़ना पड़ेगा या फिर उसको अपने लाइफ से दूर करना पड़ेगा जो कि तुम अभी डिपेंडेंट हो चुके हो. तो वैसे चीज मतलब वैसा हार्श चेंज अपने लाइफ में कुछ बहुत कम लोग ही ला सकता है. तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल मतलब मैं देने की कोशिश की टू जस्टिफाई दिस राइटिंग. So for them, tomorrow is not their immediate concern. मतलब कल क्या होने वाला है वो अभी नहीं सोचेंगे. मतलब कल मतलब this tomorrow term means almost
from 50 to 60 years later, what will happen? They are not that much concerned about that. They are concerning about what will happen to the next day or within the 10 years. मतलब कि उसके उनके लाइफ स्पैन में जितना साल वो अपने आप से एंजॉय कर सकेगा, उतने लाइफ स्पैन में मतलब किसको कौन कितना मतलब रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट इनकम कर सकता है, उसी पे सबका बस फोकस है. हम लोग लॉन्ग टर्म में नहीं देख रहे हैं, मतलब हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको क्या सहना पड़ेगा. तो अभी ये एक साइकोलॉजी है जो कि अगर हम एक एक में वो चेंज ला सकते हैं तो शायद एनवायरमेंट वाइज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हम आज से ही चेंज ला सकते हैं. ओके, सो हियर अनदर साइकोलॉजी. As you can see in this balance, human versus earth, in this balance, this diagram is showing earth versus human. So in earth, the environment and nature, the ecosystem comes and falls in this part. And in the human side, the money, industry, development, technology, these comes first. So अभी क्या हो रहा है, ह्यूमन के ये सब प्रोपोजिशंस के वजह से मतलब ये दोनों में इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए, एनवायरनमेंट, नेचर. अगर इकोसिस्टम है तो हम लोग है, इकोसिस्टम नहीं है तो हम नहीं है. तो ये बेसिक चीज हमको समझ में नहीं आता है, जबकि हम लोग इस चीजों में ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी के लिए, इसीलिए इसका पलड़ा अभी भारी है. हम इसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, जो कि इसका भुगतान हमको कुछ साल में ही शायद देखना पड़ेगा. क्योंकि ऐसे अगर देखोगे कि हमारे जो पिछले जनरेशन के थे, पिछले मतलब अगर तुम अपने पिछले से पिछले जनरेशन को देखोगे कि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है, उनको देखना, उनको मतलब उतनी ज्यादा बीमारी नहीं होती थी उन दिनों में. पर हमारे इस एज में ही मतलब ऐसे बीमारी आ गया है जो कि शायद जब इंसान 50 प्लस एज में आता है तब वो सब बीमारी आती है. अगर तुम कहीं पे देखोगे कि कुछ जगह में ये भी मतलब कुछ टीनेजर्स में ये देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 22 ईयर 40 प्लस या फिर 50 प्लस एजेस में हुआ करता था. तो अभी क्या बीमारी बहुत मतलब अर्ली एजेस से ही शुरू हो जा रहा है. तो इसका कनेक्शन तुम्हारा एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमको जो भी मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट, हम जो एयर ले रहे हैं, जो ब्रीथ कर रहे हैं, वो ही इतना पॉल्यूटेड है कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा हैम्पर होती है. तो इम्यूनिटी सिस्टम ब्रेक होने की वजह से और भी बहुत सारी रोग जो है, डिजीज जो है हमको आ जाएगा. तो ये हम लोग अभी उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उतना भी फिजिकली पेन सहना नहीं पड़ रहा है, ज्यादा कनेक्टेड है. ओके ओके, सो द सेवरल इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस विथ नेचुरल इक्विलिब्रियम्स, लाइक वी हैव डिस्कस्ड इट, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर इंडस्ट्रीज. One sector is automobile transportation vehicle, another sector is wastage on natural resources. Next, another sector is killing animals, and the next one is construction industry. These are some human interference which is disrupting the balance of ecosystem. Okay, अच्छा, ये पिक्चर मैं दिखाना चाहूंगी. ये जो एक ग्रेविटास एक चैनल है वहां पे दिखाया गया था. These are the threatened location, and these locations are threatened by the climate change. अब climate change में क्या मतलब फॉल्ट होने वाला है कि देखा गया है with the satellite study within 2050, within 2050, these are the location which will going to drown in the sea water. देखो यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, न्यूयॉर्क सिटी, न्यू ऑर्लिन्स, पनामा सिटी, लंदन, अलेक्जेंड्रिया, मुंबई, कोलकाता, बैंकॉक, कुचिंग, हो ची मिन सिटी, शंघाई, पोर्ट डॉगलस, मनीला, ये सब लोकेशन विद इन 2050 ईयर में
ड्राउन हो सकता है अगर ये क्लाइमेट चेंज ऐसे ही मतलब बढ़ता रहे ड्यू टू एनवायरमेंट पॉल्यूशंस। तो ये अभी नहीं पता चल रहा है, पर जब मतलब एनवायरमेंट डिसबैलेंस होना शुरू कर देगा तब हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अभी अगर मतलब ऐसा होता है ना कि जब कुछ मतलब शरीर एकदम बहुत अच्छा है, फिट है, तब मतलब कुछ भी खा लो, कुछ गिल्ट नहीं लगता है, पर पेट खराब हो जाता है तो लगता है अरे ये नहीं खाना था, ये अगर ये खा लिया तो ऐसा हो रहा है। मतलब कुछ होने के बाद पता चलता है कि ये करना नहीं चाहिए था। तो उतना भी देरी ना हो जाए, तो हम अगर एक एक करके भी उतना कॉशन ले सके हमारे लाइफस्टाइल में तो चेंजेस आ सकती है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। These are some satellite studies which has been taken. Okay, okay. So these are the sources of primary air pollutants. अब primary air pollutants ये तो परे होंगे, इसको मैं फिर से डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन, यहाँ से प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स का ज्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन से होती है। उसके बाद वेस्ट बर्निंग, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, डीजल जनरेटर, इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक कुकिंग। सो इन सब चीजों के कंट्रीब्यूशन से प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्रिएट होता है। अच्छा, मैं थोड़ा एक छोटा सा हिस्ट्री बता दूं ये एयर पॉल्यूशन को डिस्कस करने के पहले। तो ये एयर पॉल्यूशन का जो इशू है ये हमारे मतलब अभी कुछ साल में नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से इसका जो मतलब एयर पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है ये बहुत पहले से है, मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो एक जो जाने माने हस्ती थे हिपोक्रेट, तो वो एक एंशियंट फिजिसिस्ट, ग्रीक के एक एंशियंट फिजिशियन थे। तो वो मेडिसिन प्रैक्टिस भी करते थे ग्रीक में। ये अबाउट 400 बीसी बिफोर क्राइस्ट की बात कर रही हूँ। तो तब मतलब तभी इतने पॉल्यूशन का जो मैटर था, पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम था, तभी उनके बुक में ये पॉल्यूशन का जो पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या चीजें किया जा सकता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लिया जा सकता है, वो सब उनके बुक में मिलता है। तब उन दिनों में एक्चुअली ये जो पॉल्यूशन अगर देखा जाए एंशियंट टाइम में, इसका जो ओरिजिन था वो था कि मतलब व्हेन द मैन स्टार्टेड यूजिंग द फायरवुड, वो जब लकड़ी का जलाना चालू हुआ फॉर कुकिंग पर्पस, फॉर हीटिंग पर्पस, मतलब लोहा को गलाने के लिए या फिर अपने सेफ्टी के लिए, ये जो फायरवुड का जो बर्निंग स्टार्ट हुआ ना, तो इसके वजह से ही एकदम शुरू से पॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ था। तो अब हिपोक्रेट्स के उस बुक में तो मिलता है ये सब एयर पॉल्यूशन की जो बातें हैं, वो बिफोर क्राइस्ट में लिखा गया था। उसके बाद जो नोटेबल है वो हुआ था कि हमारे लंदन में 1952 दिसंबर, उस टाइम में ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक लंदन स्मॉग हुआ था। मतलब लंदन में पूरा एकदम अंधेरा छा गया था स्मॉगिंग के वजह से, इतना पॉल्यूशन बढ़ गया था। इसके वजह से 5 दिन तक ये पॉल्यूशन मतलब ये स्मॉग पूरा फैला हुआ रहा था लंदन में। तो उस वक्त इस 5 दिन में ऑलमोस्ट 4000 इंसान मारे गए थे ये पॉल्यूशन के वजह से। तो उसके बाद से पूरा मतलब एकदम स्ट्रिक्ट वे में ये पॉल्यूशन का जो बोर्ड है, ये पॉल्यूशन बोर्ड क्रिएट करवाया गया बाय गवर्नमेंट है। और ये एयर पॉल्यूशन जो इंक्रीज हुआ था वो एक्चुअली ये तो जो उसका सोर्स था मैं बताई कि फायरवुड ये जलाना जब से चालू हुआ फॉर कुकिंग पर्पस और फॉर हीटिंग पर्पस, तब से एयर पॉल्यूशन का स्टार्ट हुआ। उसके वजह से उसके बाद में जितना इंडस्ट्री ग्रो करता गया, जितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते गए, मतलब अबाउट इन द 20th सेंचुरी, जबकि ट्रेन के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए डीजल, कोल ये सब बर्न करना शुरू हो गया था। एविएशन फ्यूल में जो सब एमिशंस मतलब होता था उसके वजह से और भी बढ़ गया।
जैसे कि मतलब केमिकल फ्लूम्स, जिंक रिफाइनरीज, केमिकल इंडस्ट्री, मेटलर्जिकल प्लांट, आयरन स्टील प्लांट, ये सब इंसिनरेशन प्लांट, ये और रेडियो एक्टिव डस्ट, ये जो थर्मल पावर प्लांट होता है। तो इन सब और भी साइंटिफिकली जितना मॉडर्न होता गया उतना ही हमारा पॉल्यूशन वो और भी पूरा एंटायर अर्थ में स्प्रेड होता गया। अभी क्या, पहले ऐसा होता था कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में ज्यादा, जहां पे ज्यादा इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ है वहां पे एयर पॉल्यूशन का मात्रा सबसे ज्यादा हुआ करता था। अभी मतलब वैसा कुछ नहीं है, अभी सारे जगह पे वो स्प्रेड कर चुका है ऑलरेडी। तो एयर पॉल्यूशन का ये जो थोड़ा कॉन्सेप्ट, ये हिस्ट्री में बताना चाहती थी ये स्टार्ट करने से पहले। तो the introduction about this, that the air is essential for life itself. Without it we could survive only few minutes. It constitutes immediate physical environment of living organisms. The atmosphere is layered into 4 distinct, which are troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere, which I have explained in earlier. The normal components of our atmosphere are nitrogen, oxygen, carbon dioxide and the rest of the particles. So nitrogen का जो मतलब पूरा पार्टिसिपेशन है हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वो ऑलमोस्ट 78.1% सबसे ज्यादा है, जिसका यूज मतलब ऑलमोस्ट मतलब इंडस्ट्रीज में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का यूज उतना ज्यादा नहीं होता है। और एक लाइफ सस्टेन करने के लिए जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें भी नाइट्रोजन नहीं लगता है। और देखो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसी गैस का ही है। उसके बाद है ऑक्सीजन 20.9%, देन कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड अंडर एवरीथिंग एल्स मीन in 0.07%, all the gases like noble gas, krypton, xenon, argon, helium, methane, sulfur dioxide, these all comes under this 0.07%. अब ये जो परसेंटेज हम आज भी पढ़ रहे हैं, ये परसेंटेज ऑलमोस्ट हम हमारे स्कूल लेवल से पढ़ रहे हैं। पता नहीं इसका अभी चेंज्ड परसेंटेज क्या हुआ होगा, थोड़ा तो कुछ ऑल्टरेशन तो हुआ होगा, उसका लेटेस्ट डेटा मेरे पास अभी नहीं है, मुझे अगर मिला तो मैं तुम लोगों को शेयर करूंगी। सो दीज आर सम नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। तो अभी देखते हैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में एयर पॉल्यूशन किसे बोलेंगे। Okay, the air pollution consists of gases, liquids or solid present in the atmosphere in high enough levels to harm humans. मतलब कि एयर पॉल्यूशन सिर्फ गैसियस वे में ही नहीं रहेगा, ये गैस, लिक्विड, सॉलिड किसी भी फॉर्म में एटमॉस्फेयर में अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में रहेगा जो कि ह्यूमन को हार्म कर रहा है, एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स और मटेरियल मे बी डिफाइंड एज एनी एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन विच certain substances are present in such concentration that they can produce undesirable effect on the man and his environment. मतलब कि एयर पॉल्यूशन हम तभी उसको बोलेंगे जिसको मतलब जिसी भी स्टेट में रहे, चाहे वो गैसियस, लिक्विड या सॉलिड, किसी भी स्टेट में रहे, वो अगर बहुत ही ज्यादा लेवल में रहे जो कि इंसानी जो इंसान को हार्म करता है और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी, या फिर बायोस्फीयर में रहते हुए और भी बाकी एनिमल स्पीशीज या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है सबको अगर हार्म कर रहा हो, तभी उस स्टेट को या फिर उस पॉल्यूटेंट को हम, उस पॉल्यूटेंट से एयर पॉल्यूशन हो रहे हैं, हम ऐसा बता सकते हैं। ओके, तो any visible or invisible particle or gas found in the air that is not part of the original normal composition and affecting our environment adversely can be termed as pollutant. मतलब कि यहाँ पे
और एक चीज बताया गया है कि मतलब अगर कोई भी इनविजिबल और विजिबल पार्टिकल या फिर गैस जो कि एयर में से अगर मिलता है, जो कि ओरिजिनली अपने नॉर्मल कॉम्पोजिशन से अलग है, मतलब नॉर्मल उसका जो सोर्स कॉम्पोजिशन है या फिर रॉ कॉम्पोजिशन है वो उससे बहुत अलग बन चुका है, तो उसके वजह से अगर कोई मतलब एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है तो उसको हम एयर पॉल्यूटेंट बोल सकते हैं। तो एयर पॉल्यूशन पढ़ने के टाइम हमको क्या मिलता है, दो टाइप का एयर पॉल्यूटेंट डिवीजन मिलता है, तो उसको देखते हैं। The types of air pollution. Well, air pollutants may be either emitted into atmosphere or formed within atmosphere. मतलब कि एक तो होता है एयर पॉल्यूशन, हम किसको बोलेंगे, एक तो है कि एटमॉस्फेयर में ही बना है और है कि आर्टिफिशियली बना के एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो गया है, आर्टिफिशियली बन के एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो गया है। The atmospheric air contain hundreds of air pollutants from the natural or anthropogenic sources. That means that atmospheric air contains hundred or numerous air pollutants which are maybe natural or maybe from the anthropogenic sources. Well, what does anthropogenic means? Anthropogenic का मतलब है man made, मतलब इंसान से बनाया गया आर्टिफिशियल जो पॉल्यूटेंट है। तो इसमें पहला जो टाइप है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, इसके बारे में पढ़ते हैं। द पॉल्यूटेंट विच आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द identifiable sources, either from natural hazardous event like dust, storm, volcano, etc., or from human activities like burning of wood, coal, oil in home or industries or automobiles, etc., are called primary pollutants. मतलब के जिस पॉल्यूटेंट के वजह से, जो पॉल्यूटेंट एकदम डायरेक्ट सोर्स से बनता है, मतलब कोई तुम लोगों में से अगर कोई ड्राइंग सीखे हो बचपन में, तो एक होता है प्राइमरी कलर, दूसरा होता है सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर कौन सा होता है, जो एकदम डिस्टिंग्विश होता है, वो किसी से बन के नहीं आता है, जैसे कि ब्लू, रेड, येलो। सो दीज आर प्राइमरी कलर, मतलब इन कलरों को कोई भी दूसरे कलर को मिक्स करके बनाया नहीं जा सकता है, ये कलर एकदम डिस्टिंग्विश ओरिजिनली होता है। पर इस कलर को मिला के हमको सेकेंडरी कलर मिलता था, जैसे कि रेड और येलो को मिक्स करोगे तो ऑरेंज मिलता है, ब्लू और येलो को मिक्स करोगे तो ग्रीन मिलता है, ब्लू और रेड को मिक्स करोगे तो वायलेट मिलता है। इन सिमिलर वे प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स भी वैसा ही है, मतलब एकदम डिस्टिंग्विश सोर्स से बनता है। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होता है जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से बन के मिल के बनता है, उसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो अच्छा, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का एग्जांपल देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन CO, CO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO2। यहाँ पे ये 2 जो है ये सफिक्स में ठीक से नहीं दिया गया है। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बोन्स SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो ये सब चीजें, ये सब जो पॉल्यूटेंट है ये है प्राइमरी पॉल्यूटेंट। इसी पॉल्यूटेंट से हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनता है, तो ये हमारा जो है मदर पॉल्यूटेंट, इसीलिए इसको प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट बोला जाता है। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होगा, जो मैं अभी बताई, the primary pollutants often react with another or with water vapor, aided and aided by the sunlight to form entirely a new set of pollutant। मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो होता है उससे रिएक्ट कौन कौन करता है, वाटर वेपर हो सकता है, सन एब्डेट मतलब के मतलब तुमको इन्फ्लुएंस करना नेगेटिवली, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस सनलाइट से भी हो सकता है, उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस के वजह से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्रिएट होता है। तो इट फॉर्म्स एंटायरली अ न्यू सेट ऑफ पॉल्यूटेंट।
So that calls secondary pollutant. These secondary pollutants are chemical substances which are produced from chemical reaction of natural or anthropogenic pollutants or due to their oxidation etc. caused by energy of sun. मतलब कि ये secondary pollutant ज्यादातर chemical substances होती है जो कि मतलब नेचुरली भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। तो ये ऑक्सीडेशन होने के वजह से और सन द्वारा मतलब इन्फ्लुएंस होने के वजह से ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनता है। और ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स ज्यादा हार्मफुल होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट से। जैसे कि देखो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये कैसे बनता है, SO2 जो हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट था सल्फर डाइऑक्साइड, इससे अगर हमारा वाटर वेपर मिक्स होगा, अब वाटर वेपर मैन मेड भी हो सकता है, नेचर वाइज भी हो सकता है, तो इससे क्या H2SO4 बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इससे हम बचपन में पढ़े हैं कि एसिड रेन इससे बनता है। फिर ओजोन, ये ओजोन फॉर्मेशन कैसे होता है, ये ओजोन आयन के साथ सनलाइट का जो रिएक्शन होता है उससे ओजोन लेयर बनता है। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड, पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट जिसको हम पैन बोलते हैं, ये सब है हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ओके, तो हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट समझ में आया? हेलो, यस मैम। ओके, तो हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है एकदम बेसिक, जो सोर्स है उससे बनता है हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। जस्ट अ मिनट।